शुरू करते हुए इजाजत लेंगे. On the International Day of Yoga 2021, it is my privilege to welcome the Honorable Union Minister of Tourism and Culture, Shri Prahlad Singh Patel ji, and Secretary Tourism, Shri Arvind Singh ji, and all the viewers who have joined from various parts of the world on this very auspicious and special day. We have with us, and ये हमारा सौभाग्य है in fact, कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर आज हमारे साथ जुड़े हैं खुद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. नमस्ते गुरुदेव, आपको आमंत्रण है इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर. गुरुदेव जी के बारे में क्या कहा जाए. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्म साउथ इंडिया की तरफ हुआ और 4 साल की उम्र में ही he had astonished his teachers when he read the whole Bhagavad Gita at the tender age of 4. And he is now a universally revered spiritual and humanitarian leader. He has been awarded with the Padma Vibhushan in 2016, and he established the Art of Living, which is an educational and humanitarian NGO that works in special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations. The organization works in 156 countries. Gurudev, it is a pleasure and indeed a privilege to have you with us. And at the outset, with your permission, as instructed by the team of Art of Living, we would like to play the video that showcases all the different activities that you undertake. May we have the video? In an era when ancient wisdom was buried under years of ritualistic practices, when games became wars and wars were played like games, a young boy was found in deep meditation in a quaint village in South India known as Ravi Shankar. He would say, "I have family everywhere. People are waiting for me." He astonished his teachers by reciting the Bhagavad Gita at a tender age of 4. With his education in Vedic literature and physics and his deep and profound knowledge of the spiritual world, he became one of the most prominent sages of the modern world. All through his life, he has been reviving ancient knowledge and creating tools and techniques that have benefited millions across the globe in living a deeper and a more joyous life. In 1981, the Art of Living was established by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Nurtured by his care and contribution, the Art of Living has rapidly grown across 156 countries, reaching over 450 million people. More people are searching harder for inner peace these days. Would you agree? Correct. One of Gurudev's most unique offerings to the world is the Sudarshan Kriya, a powerful breathing technique that facilitates physical, mental, emotional, and social well-being. He has designed 57 exclusive courses that empower individuals and cater to the needs of a wide spectrum of institutions in the society. Back then, Gurudev started the Art of Living service projects by taking responsibility of reviving a sinking school which had no funds. Today, his intention has manifested in over 702 free schools, which provides education and food to more than 80,000 children in rural and tribal parts of India. During the COVID-19 pandemic, the Art of Living Foundation pioneered the I Stand With Humanity initiative, providing more than 80 million meals to the daily wage earners in over 170 cities across India. The service initiative during the pandemic included the distribution of 6,000 tons of food to 5 million families. It helped set up 7 COVID care hospitals and provided with over 200,000 PPE kits. Trauma relief programs were also conducted for more than 1 million migrant laborers and COVID warriors to bring mental relief. To combat the fear, stress, and anxiety during such times, Gurudev launched the World Meditates campaign and also personally conducted online guided meditations twice daily, touching the lives of millions by bringing solace and keeping the hope alive. From childhood,
Gurudev had immense faith in the principle of non-violence. With escalating violence and conflict in the world, Gurudev has brought peace in situations where war seemed like the only solution. Thousands of militants and Naxalites laid down their weapons and chose meditation in the northeast and other parts of India. এই সংগ্ৰামখনত আমি সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। লাষ্টত গম পালোঁ যে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে আমি জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰামত জয়ী হ'ব নোৱাৰিম। His efforts include bringing an end to a 52-year-old fierce conflict between the FARC and the Colombian government. Ojalá podamos los colombianos abrazar pronto el principio gandiano de la no violencia. Coincidimos con el maestro Shankar. Gurudev has visited Iraq several times and addressed peace conferences to bring respite to the nation and its citizens. He has hosted a series of trust-enhancing interventions in Jammu and Kashmir, providing all the stakeholders to voice their opinions in an effort to restore peace in the valley. I was named Muhammad, but after becoming a militant, I was called Khalid. We had been taught to operate guns, arms, and train other youths. But now, after doing the Art of Living course and meeting Sri Sri, we realized we had chosen the wrong path. We now want to spread love and non-violence in Kashmir. Gurudev's programs have impacted people involved in armed conflicts across the world, making him a global ambassador of peace. We gather today in this wonderful occasion of tolerance, blessed by our Master of Love. Gurudev strongly believes that behind every culprit there is a victim crying for help. The Art of Living prison program is helping to rehabilitate the prisoners. It has reached out to over 800,000 prisoners globally and has brought immense transformation in their lives. I actually look forward to fights. But now since doing this course, I'm a total different person. I can now walk away from a fight. I don't think any human being is totally bad. If he's bad, it's only his understanding, his behavior, his actions. But there is a good side to him. I only see that. The Art of Living's Welcome Home Troops project has transformed lives and brought veterans out of aggression and depression. 94% of these veterans who were suffering from the unseen wounds of war reported peace of mind and reduced stress and anxiety levels. The Art of Living has also been working towards the betterment of the environment. 48 rivers and thousands of water bodies in India have been revived. Conducted more than 100,000 cleanliness drives. Planted over 81 million trees in 36 countries. More than 2.2 million farmers have been trained to adopt natural farming till date. Gurudev found the Sri Sri Rural Development Program Trust to empower rural India. Volunteers have developed thousands of model villages across India, providing solar energy to over 90,000 individuals under Light a Home project. Gurudev's vast global network of volunteers is well known for mobilizing trauma and disaster relief for the affected populations around the world. In a world torn apart by religious, social, national and cultural divides, Gurudev's vision is to see the whole world as one family. Gurudev inspired Guinness World Record events like the World Culture Festival. The festival brought together over 3.75 million people from 155 countries with spectacular performances on a breathtaking 7-acre stage equivalent to 6 football fields by 36,602 dancers and musicians from around the globe, celebrating the diversity of all faiths and cultures. The Art of Living has hosted historic events leading to multiple Guinness World Records. If you can have a mind of a scientist and a spiritual force of His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji gives, then we have a beautiful world
and happy world and prosperous world. And organizing a meeting no politician on earth could ever dream of. The Art of Living Foundation. For 25 years, it worked on programs promoting peace, combating violence and drug addiction, empowering our youth. It has an incredible following that cuts through all religions, cultures, and backgrounds. A very, very difficult thing to do in today's world. Gurudev has been conferred with numerous awards around the globe, including the highest civilian award of Colombia, Mongolia, and Paraguay, the Padma Vibhushan, one of India's highest civilian award, and 23 honorary doctorates globally. His vision for the world is to see a smile on every face and create a stress-free and violence-free society. The voice of peace, the voice of truth should be heard loud and clear. Thank you, Team Art of Living. At this juncture, I would like to now request our Honorable Minister of Tourism and Culture, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी. सर, आपसे अनुरोध है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 पर हम सबको संबोधित भी करें और अपने विचार साझा करें. आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 7वीं वर्षगांठ है और ऐसे अवसर पर हमारे बीच में योग के लिए समर्पित और योग को सहज और विराट रूप में प्रस्तुत करने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता पद्मश्री आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी ऐसा मैं विश्वास रखता हूं. पिछले 3 वर्षों में जब हम 2019 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे थे तो इंडिया गेट के सामने उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ था. पिछले वर्ष जब कोरोना की महामारी थी तब प्रत्यक्ष कार्यक्रम पूरे देश में एक ही हुआ था, वो पुराने किले पर हुआ था. बाकी सभी लोगों ने अपने घरों से योग अभ्यास करके अपने अवसर पर योगदान दिया था. इस वर्ष भी कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने 75 स्मारकों पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए और तय किया कि 21 लोग हर स्मारक पर अपना कार्यक्रम करेंगे. और उसके पीछे जो उद्देश्य था कि आजादी के 75 वर्ष का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसलिए आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए ASI के जो भी हमारे स्मारक हैं वो हमारी आइकॉनिक साइट्स या टेंटेटिव लिस्ट में आने वाले स्थान, उन पर योग का कार्यक्रम करके योग धरोहर की दृष्टि से हम उस कार्यक्रम को प्रचारित करें ताकि जनता दोनों बातों को समझ सके. योग अपने आप में विरासत है, लेकिन जो हमारी मूर्त विरासत है उनकी भी चर्चा इसके साथ में जुड़े, ये उसका उद्देश्य था. कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योगा फॉर वेलनेस का स्लोगन दिया और उस स्लोगन के साथ में आज सारे कार्यक्रम पूरे देश में हुए हैं. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस महामारी के पहले और महामारी के बाद पूरी दुनिया में जो चर्चा है डिप्रेशन को लेकर या पोस्ट कोरोना लोगों के साथ कैसे बर्ताव हो, उसका स्थायी समाधान अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है. वो चाहे योग के रूप में हो, चाहे आयुर्वेद के रूप में हो या आयुष के रूप में हो.
मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते भी ये बात पहले चरण के बाद बड़ी जोरदारी के साथ कहता था। वो मैं प्रधानमंत्री के 3 बातों का उसमें उल्लेख करता था। पहला था कि जब उनने योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता दिलवाई, ये उनकी तपस्या का भी परिणाम है, और आप जैसे साधु संतों के जो वर्षों से इस कार्य में निष्काम भाव से, परोपकार के भाव से लगे थे, और वो परिणति आई और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार्यता मिली। और न सिर्फ स्वीकार्यता मिली बल्कि पूरी दुनिया ने उस कार्यक्रम को अपने अपने ढंग से संपन्न भी किया, और ये भारतीय संस्कृति के मान बढ़ाने वाला काम था। दूसरा, जब पहले चरण में जब कोरोना की महामारी पूरे दुनिया में फैली, तो भारत एकमात्र देश था जिसने 150 से ज्यादा देशों को, जिसमें ताकतवर अमेरिका भी था और जरूरतमंद ब्राजील जैसे देश भी थे, उनको दवाइयां पहुंचाकर अपनी उस सनातन परंपरा का काम किया जो हमारे ऋषि मनीषी साधु संत कहते रहे। 2 रोटी आपके पास हो, कोई भूखा सामने आ जाए तो एक उसको देना, एक से अपना काम चलाना। हम इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी जरूरतमंद है, लेकिन हमने उसके बाद भी एकमात्र भारत ही ऐसा देश था जिसने प्रधानमंत्री की अगुवाई में दूसरे देशों की मदद की। और तब मैंने बीच के जो गैप था, जिसमें विदेशी पर्यटक तो नहीं आया लेकिन स्वदेशी पर्यटकों की जो गति रही, उस समय मैं ये मानता था कि टूरिज्म में, पर्यटन में परसेप्शन की लड़ाई बहुत है। हमारे खिलाफ दुष्प्रचार बहुत होता है। कुछ हमारी गलतियों से हो तो हम उस गलती को सुधारने का काम करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि परसेप्शन बिगाड़ने वाली ताकतें काम करती रही हैं, और उस दृष्टि से मैं सोचता था कि परसेप्शन ने काफी ऊंचाइयां छुई हैं। तीसरा उदाहरण मैं देता था कि जब वो पहली महामारी थी, अनेक देश के पर्यटक इस देश में थे, वो भारत में अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे और वो अपने देश में जाने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय पर्यटन मंत्रालय ने पोर्टल स्टार्ट किया था, जो बाहर जाना चाहता है, अपने घरों में वापस करना चाहता है, हमने उसकी मदद का प्रयास किया था, तब ये अनुभव हमारे सामने आया। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति, हमारे वो सारे तरीके लोगों के जहन में, इतने मन में इतने प्रगाढ़ता के साथ में बसे हुए हैं कि वो मानते हैं कि ये स्थायी समाधान है। लेकिन जो दूसरा लहर कोरोना की आई, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, वो परिस्थितियां वर्तमान में अभी भी जस की तस है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में आज एक वाक्य का प्रयोग किया कि हम प्रमाद से परोपकार तक की यात्रा योग के माध्यम से कर सकते हैं। योग सहयोग देने के लिए है, और उन्हें यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कल हमसे अपेक्षा की है भारतवर्ष से, कि योग की एक छोटी छोटी सीढ़ी बनाकर दुनिया को दी जाए ताकि लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकें। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति की इस विधा की और भारतीय संस्कृति की ये बेहद बड़ी सफलता है, और मैं मानता हूं कि हम जब कभी कल्पना करते थे अपने विचारधारा की दृष्टि से या विचार के मंथन में, तो हमेशा हम बचपन से छात्र राजनीति से कहते आते थे कि भारत माता विश्व गुरु के पद पर बैठे, हम वो अपनी आंखों से देखें। मुझे लगता है कि यह कालखंड एक तरफ चुनौतियों भरा है, लेकिन समाधान इसी देश की धरती पर है, और उसके लिए जो वर्षों से काम किया गया है, उसमें से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की जो अपनी उपस्थिति है वो दिखती भी है। इस स्लाइड्स में भी पूरी दुनिया में जो प्रभाव दिखता है, जो उपस्थिति दिखती है, ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली है। और इसलिए मैं इस अवसर पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन है, जो उन्होंने कहा है कि प्रमाद से लेकर हम परोपकार तक के इस मार्ग पर योग के माध्यम से जा सकते हैं, मुझे लगता है ये अवसर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। मुझसे कहा गया था कि मैं सबको प्रश्न पूछूं। प्रश्न जैसी बात तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बार मेरे गुरुदेव परम पूज्य शिवासी से मैं सत्संग कर रहा था, उसी समय टीवी पर योग का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रारंभ हुआ था। ये वर्षों पुरानी बात है। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, वो सवाल को मैं जस का तस, क्योंकि मैं उसका उत्तर बहुत आसानी से दे नहीं पाया। उन्होंने मुझसे कहा कि योग निरोग करने का की पहली सीढ़ी है, शरीर को स्वस्थ करता है, लेकिन ये मुकाम नहीं है, ये मंजिल नहीं है, एक प्रारंभिक ज्ञान है। अगर हम पढ़ते हैं
तो शिक्षा से हमें डिग्री मिलती है, लेकिन हम नौकरी करें या ना करें लेकिन शिक्षित तो हो ही जाते हैं। योग की शुरुआत है शरीर का स्वस्थ होना, और उसके बाद फिर हम जिन चरणों की तरफ आगे बढ़ते हैं वो हमारी आध्यात्मिक परंपराओं में अनेक परंपराएं हैं, उसमें एक आप भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन बात आती है पात्र की और कुपात्र की। ये फैसला करना हमारा काम नहीं है, लेकिन जब कभी ऐसे लोग जिनकी मनस्थिति बदल जाती है, जो आतंकवाद के हथियार छोड़कर अलग चले जाते हैं, लेकिन योग और शरीर का स्वास्थ्य, भारतीय परंपरा में तो हम किसी के साथ भेद नहीं करते, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से देश और दुनिया के किसी भी मानव में हम भेद नहीं करते। लेकिन गुणदोष के आधार पर जो चारित्रिक पतन से ग्रस्त लोग हैं, क्या ऐसे लोगों को यौवन देना या बाकी चीजें करना ये ठीक होगा? जब किसी संत के सामने कोई जाता है तो संत की अपनी दृष्टि होती है, संत की अपनी सावधानियां होती हैं, लेकिन जो बाकी लोग प्रैक्टिस कराते हैं उनके साथ ये पैमाने नहीं होते हैं। आपके सामने कोई जाएगा तो आपकी तपस्या से, आपके प्रभाव से वो अपने अवगुण को छोड़ देगा। आपकी नजर भी इतनी पैनी होती है कि आपको पता होता है कि इसको किस चरण तक पहुंचाना है। लेकिन जो व्यावसायिकता के आधार पर योग के गुरु या योग के प्रशिक्षक, गुरु कहना तो ठीक नहीं होगा, योग के प्रशिक्षक जिस प्रकार से योग को बांटने का काम करते हैं, उसमें ये संकट सदैव बना रहेगा कि हम स्वस्थ शरीर किस प्रवृत्ति को लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसे में कई बार ये नई चुनौती भी सामने आ सकती है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न है, मैं प्रश्न तो से नहीं मानता, लेकिन ऐसी चीजों को संज्ञान में लेना आप जैसे महापुरुषों के लिए जरूरी है। भारतीय परंपरा में जो मनीषी माने जाते हैं, जो आचार्य की श्रेणी में आते हैं, उन सबके सामने सावधानी की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आप जो दृष्टिकोण रखते हैं, आपकी चर्चा में, आपके उद्बोधन में, आपके प्रवचन में वो मुझे मिलेगा। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर से संस्कृति मंत्री होने के नाते और पर्यटन मंत्री होने के नाते आप कार्यक्रम में पधारे, मैं आपका हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ, और आपके कामों की सराहना करते हुए पुनः आपका अभिनंदन। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी ने। बहुत गहरी और बड़ी विचार रखने वाली बात गुरुदेव आपसे पूछी है। Just a first step to healthy body, to an eventual upliftment towards spirituality. So, Gurudev, since it is the International Day of Yoga, we would like your reflections on the theme that the Honorable Prime Minister has mentioned this time, Yoga for Wellness, and the aspect that Honorable Minister has also raised. Gurudev. Yes. There is a saying in our ancient scriptures, Sharira Madhyam Karu Dharma Sadhana. Our body is the very instrument through which our consciousness can reach higher heights, bigger heights. So, body has its role to play. Whenever we do any pujas or any spiritual practice, first thing is asana shuddhi. Sthira Sukham Asana, where you are comfortable and you are steady, that is what is asana. And with this asana, the basis that we go forward. जो आसन शुद्धि होने के बाद ही फिर प्राणायाम की प्रक्रिया है। प्राणायाम और आसन के बगैर कोई ध्यान में जा नहीं सकता, ये साधारण एक नियम है। अच्छा, योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कई लोगों का ये मंतव्य है पहले यम नियम में कोई सिद्धि प्राप्त करे, फिर जाके उनको आसन सिखाना चाहिए, प्राणायाम, फिर ध्यान की ओर चलना चाहिए। ये हमारी जो परंपरा में कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं। उसमें एक भिन्नता ये भी है कि जहां पर पहले ध्यान की अवस्था समाधि किसी को लग जाए, फिर वो अपने आप यम नियम के रास्ते पर आ जाते। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को हुआ,
रामकृष्ण परमहंस से उनको ना आसन पूछा ना कुछ पूछा, उनके सिर पे हाथ रखी, उनको एक बिजली कौन दी अंदर से, समाधि के अनुभव हुआ, फिर वो बाकी सब आ गया। इसलिए हमने भी इसी तरीका अपनाया। हमने ये नहीं कहा कि इस नियम पालन कर रहे हैं फिर जाके इनको ध्यान सिखाने का, नहीं, ये ऐसा होगा, एक अस्पताल खोल दीजिए और वहां बोर्ड लगा दीजिए जहाँ रोगियों का प्रवेश नहीं, तो वह अस्पताल का मतलब ही नहीं। योग और ये जो वेदांत की विद्या है, ये जीवन को सुधारने के लिए, इससे जीवन सुधर जाता है। आदमी कैसे भी हो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदि कोई दुराचारी भी हो, कितने भी दुराचारी क्यों ना हो, जैसे वो इस ज्ञान में आता है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते, थोड़ा सा भी इस धर्म का वो पता भी चल जाए, वो आगे बढ़ जाए। साधुरेव समन्तव्यम् सम्यक व्यवस्थित हो, भगवान कृष्ण गीता में कहा। अपिचेत दुराचारी, दुराचारी भी हो, उसको भी इस दरवाजे के अंदर आते ही जीवन सुधर जाता है। ये हमने अनुभव किया है, जेलों में कैदियों के साथ भी, और जंगल में जो बंदूक लेके घूम रहे हैं, ऐसे नक्सलवादियों के साथ भी, अलग अलग टेररिस्ट के साथ भी, इनके साथ हम अपने शिक्षक गए और शिक्षक इनसे बातचीत करें, उनका दर्द समझा, फिर उनको कहा भाई थोड़ी देर बैठ के तो ध्यान तो करो, बाद में बात करें। जैसे ध्यान करते हैं मन शांत होने लगता है, व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा जागृत, फिर वो सत्य के मार्ग पर चलता है, हिंसा के मार्ग पर चलता है। ये सब इसको एक प्रतिक्रम होती है। एक क्रम है पूरे नियम के ऊपर से चल के प्राप्त करना, दूसरा ये अष्टांग में कोई भी अंग, किसी भी एक अंग को अपनाए, बाकी सारे अंग साथ ही साथ आ जाते हैं। ये हमारा मानना है और हमारा अनुभव में भी यही हुआ है। जो लोग पहले योग में पहले रुचि नहीं ले रहे, मैं 40 साल पहले की बात कह रहा हूँ, जब हमने विदेश में अपना भारतीय ज्ञान संस्कृति को लेके प्रचार में गए, तब योग माने लोग समझते थे बस रमा के कोई गंगा जी के प्रयाग के घाट में खड़े हो जाए वही योग कर सकते हैं आम आदमी। तो योग के नाम पे लोगों का एक तरह का अवर्षण था, तो इसलिए मैंने कहा जीवन जीने की कला नाम रख दिया, आर्ट ऑफ लिविंग। तो लोगों के मन में एक उत्सुकता चाहिए, क्या है जीवन जीने, चाहे देखें। तो जब वो लोग आने लगे, भारत में भी, भारत के युवा भी योग के प्रति काफी एक तरह के पूर्वाग्रह से पीड़ित है। उन दिनों मैं कह रहा हूँ 1980 में, 80 के आसपास, तब धीरे धीरे ये नाम दूसरा रखा, मगर अंदर आए तो उनको लगा कि अरे हमने क्या हो गया जीवन में, आसन प्राणायाम ध्यान यही तो है, और कोई क्या आसन प्राणायाम ध्यान, उसके साथ साथ भारतीय अध्यात्म की सुगंध उसमें मिलता है। तो फिर इससे फिर काफी लाभ पहुंचता है। थैंक यू गुरुदेव। धन्यवाद आपका। धन्यवाद गुरुदेव। I will now request Secretary Tourism, Government of India, Shri Arvind Singh ji, to kindly share his reflections with Gurudev. धन्यवाद गुरुदेव, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। आपके विचार, मौलिक विचार हमने सुने और हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आज हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हैं, तो है कि इस महामारी के समाप्त होने के बाद अंतर्देशीय पर्यटन में तो निश्चित हमें बढ़ोतरी मिल रही है, थोड़ी बहुत उसकी भी जानकारी आपको होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कैसे भारत में आए और उनके लिए हम क्या संदेश दें कि भारत आज आपको आमंत्रित करता है, भारत एक सुरक्षित देश है। आपने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया था 2016 में, जहां करीब
20,000 अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी वहां पधारे थे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आज प्रधानमंत्री ने संदेश दिया योगा फॉर वेलनेस, तो हमारी जो टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज है देश की, इसका हम प्रयोग कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत की ओर पुनः आकर्षित करने के लिए? आपके विचार क्या? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने ऑलरेडी इस पर एक मुहिम तो चला ही दिया है और 75 भारत के जो विशेष स्थान है, मॉन्यूमेंट्स है, वहां पर योग का जो एक प्रदर्शन के जरिए लोगों को, दुनिया के लोगों को ये समझ में आ जाता है कि हमारे यहाँ इतनी जगह खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर उनको अवश्य आना चाहिए, जाना चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिट हुआ। टूरिज्म इंडस्ट्री in the last 2 years world over. People are a little scared, but one good thing is there is vaccination now. India has, our Honorable Prime Minister has made such an effort to bring vaccination to every doorstep and made vaccination free for all 18 plus youths in this country. And there is Swachhata Abhiyan is also taken a very good shape in the country. We need to project this more in the international media. This is one thing that we need to bring. You know, India is no longer just a land of snake charmers. India is a land where mouses play and then make the world move around. So we have now, everywhere we have mouses, and through computer we have overcome all the hurdles that insurmountable hurdles that we have faced in the past few decades. But our resolution to be moving forward with resilience is something that world today is appreciating. So दुनिया को भी पता चल गया कि हिंदुस्तान बड़ा शक्तिशाली देश है और यहाँ शक्ति के साथ साथ सौंदर्य भी छिपा हुआ है। और भारत का जो सौंदर्यता है, हमारा 7 चीजें हैं जो हमारे टूरिज्म के लिए बहुत इंकरेजिंग होगी। उसमें सबसे पहला है वेलनेस टूरिज्म। हमारे योग, ध्यान, प्राणायाम, अन्य चीजों को यहाँ सीखने के लिए लोग आए, आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए आए। दूसरा है हमारे प्रेक्षणीय स्थान जो है पिलग्रिमेज, ऐसे पिलग्रिमेज सेंटर्स दुनिया में कहीं नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। ग्रीस में कुछ भी नहीं, 2-4 स्तंभे खड़े हैं, पिलर्स हैं, वो भी डेकोरेटेड पिलर भी नहीं है, उसको देखने 12 महीने टूरिस्ट आते हैं। उनका पूरा ग्रीस जो कंट्री है उसका आधार ही टूरिज्म। हमारे यहाँ जब हम गए थे वहाँ भारत से कुछ लोग आए, वो बोले अरे ऐसे तो हमने हमारे देश में पहुंच गए, हर स्टेट में है, इसको देखने देखने लोग आए। हमारी पुरातत्व जो एक वेल्थ है, हिस्टोरिक वेल्थ है, उसको हमें प्रोजेक्ट करना। जैसे मदुरै का मंदिर है, रामेश्वरम है, केदारनाथ है, इस तरह से प्रेक्षणीय स्थानों को लोग ताजमहल जानते हैं भारत में, मगर ऐसे बहुत और जगह है देश भर में, इससे इतना अवगत नहीं। दूसरी बात, और तीसरा है हमारे भोजन। भारतीय इतना व्यंजन है, इतने व्यंजन है भारत में, 5600 व्यंजन तो हमने गुजरात में एक बार अन्नम ब्रह्म करके कार्यक्रम किया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री उस वक्त वहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको उद्घाटन किया। तो 5600 तरीके का भोजन व्यंजन हमारे यहाँ होता है। ये बहुत टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, ये इसका प्रचार प्रसार कर। आपको देखिए, आप देखिए त्रिपुरा में ऐसे व्यंजन बनाते हैं, भारत के अन्य स्थान पर भी लोग इस बात को नहीं जानते।
जैसे हैदराबाद में एक पूतरे का करके बनाते हैं, वो तो हर डिश के जो है बहुत इतनी पतली सी चावल का पेपर जैसे वो बना के वो एक व्यंजन है, मिठाई है। जब विदेश से लोग आते हैं बाहर से, वो देख के वो चौंक जाते हैं कैसे बनाते हैं व्यंजन, यहाँ स्वादिष्ट और देखने में भी। फिर हमारे यहाँ आभूषण और वस्त्र, ये भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री, इसका भी जब एग्जीबिशन लगता है तो ये लोगों को आकर्षित कर सकता है। और इसके अलावा मैं कहूँगा भारत की आईटी तो सब जानते हैं, आईटी प्रोफेशन से या आईटी इंडस्ट्री, आईटी पार्क से इंडस्ट्री है, तो मॉडर्न और एशियन, नूतन और पुरातन दोनों वेल्थ यदि किसी एक देश में है तो वो भारत में है। इन दोनों को हम जब प्रदर्शन करते हैं, और आयुर्वेद भी जो है भारत का एक अनमोल देन है। अब आयुर्वेद में ऐसे हमारे पास औषधियां हैं जो कोविड में भी बहुत काम है। आयुष मिनिस्ट्री ने, प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अलग से आयुष मिनिस्ट्री बना के आयुर्वेद को इतना बढ़ावा दिया है कि आयुर्वेद से आज दुनिया में सबसे लोग बड़े लाभान्वित होंगे। आयुर्वेद कई देश में आयुर्वेद अभी आयुर्वेद की स्वीकृति नहीं है, इस पर भी हम लोगों को काम करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड हमारे इंडस्ट्री सब मिलके वहां पर उनको एम्फसिस कर सकते हैं। और हैंडीक्राफ्ट्स, भारत में जो हैंडीक्राफ्ट्स है, तो टॉयज हम बनाते हैं, इस सब चीजों का भी दुनिया में बहुत बड़ा पुल हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। तो हमारे यहाँ देखिए जंगल भी है, अमेज़न जैसे जंगल भी है, हमारे यहाँ बर्फीली पहाड़ भी है और समुद्र तट भी है। इतना नेचर हमको रिच बनाते हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में यदि हम टूरिज्म को थोड़ा और डेवलप करें, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो या त्रिपुरा हो, इन देशों, इन राज्यों पर विदेशी लोग जो बहुत उत्सुक होंगे वहां पर जाके वो लोग प्रकृति के सौंदर्य में अपना समय बिताएं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? नहीं, मैं सिर्फ धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी इसी लाइन पर आगे बढ़ने का सोचते हैं और आपने उस पर मोहर लगा दी, तो लाइन बिल्कुल सही है, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। गुरुदेव, हम सब की तरफ से दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 में हमारे साथ जुड़े। और सुबह से श्रृंखला शुरू हुई थी आज के कार्यक्रमों की, जब माननीय मंत्री जी ने खुद योग का एक शिविर लगाया लाल किले पर, हम सब भी वहां जुड़े थे उनके साथ। उसी श्रृंखला में आज आपने हमारे साथ जुड़कर मान बढ़ाया हम सबका, बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव।